ساتھ میں ہوں فلک اجاز۔ شہرنامے کے آغاز میں سب سے پہلے خبر شامل کریں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت پنجاب کے اسپیشل افراد کی ہمت کارٹ منصوبے کا عملی آغاز اسپیشل ایجوکیشن سینٹر بورے والا میں کیا گیا۔ اسپیشل بچوں میں 39 ہمت کارڈز تقسیم کیے گئے۔ اسپیشل بچوں کو ہر 3 ماہ بعد حکومت پنجاب 10,500 روپے دے گی۔ بچوں میں ٹیبلوز اور ملی نغموں کے ذریعے پاکستان سے محبت کا مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ولیق نے پودا لگا کر شجرکاری کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ جانیے ارشد نعمان کی اس رپورٹ میں۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر عظیم آباد میں 39 بچوں میں ہمت کارڈ تقسیم کیا۔ حکومت پنجاب اسپیشل بچوں کو ہر 3 ماہ بعد 10,500 روپے دے گی۔ بچوں نے ٹیبلو کے ذریعے پاکستان سے محبت کا اظہار کیا۔ حکومت پنجاب کا یہ منصوبہ ثابت کرتا ہے کہ حکومت کو عوام کی قدر ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین ملک نے اس موقع پر پودے بھی لگائے اور درخت لگانے کی اہمیت پر زور دیا۔ پریزنٹ گورنمنٹ نے اسپیشل ایجوکیشن کو بہت زیادہ امپورٹنس اور فوکس کی ہے۔ میرا نام عبداللہ ہے، میں آج ہمت کارڈ لانے آئی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں، مریم ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اپنے بچوں کو ان کو اسکول بھیجیں۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بہت زیادہ انسینٹیوز دے رہی ہیں، وہ بہت اچھا کام کر رہی ہیں، ہم ان کی شکر گزار ہیں۔ ہمت کارڈ پہ بچوں کو فری ٹرانسپورٹیشن دے رہی ہے۔ بورے والا میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچے بھی آزادی کا جشن بھرپور طریقے کے ساتھ منانے کے لیے بڑی تعداد میں بازاروں میں خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں، آپ کو تفصیلات بتا رہے ہیں بورے والا سے ہمارے نمائندے سہیل ڈوگر۔ جی، ملک بھر کی طرح بورے والا کے شہری بھی آزادی کا جشن منانے کے لیے پرجوش دکھائی دے رہے ہیں۔ آزادی کے جشن کو دوبالا کرنے کے لیے بورے والا کے بازاروں میں بڑے بڑے سٹال سج چکے ہیں، جہاں بچے بوڑھے نوجوان اپنے پسند کی چیزیں، پرچم، جھنڈے، جھنڈیاں، بچوں کے ملبوسات سمیت مختلف چیزوں کی خریداری کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی والے سے میرے ساتھ کچھ بچے موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ آزادی کے موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ 14 اگست آ رہی ہے، جیسے کہ ہم بہت خوش ہیں 14 اگست کے لیے۔ جھنڈیاں ادھر ہم بازار میں آئے تھے، اسٹور لگا جھنڈیاں لینے کے۔ 14 اگست آ رہی ہے، ہم اپنی گلیاں وغیرہ سجانے میں مصروف ہیں اور ہم اپنے گھروں میں جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے کہ جی، جیسا کہ آپ نے بچوں کی بات سنی، ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی پرچم کے سائے تلے یکجان ایک قوم ہے۔ پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، جو دنیا کے نقشے پر قیامت تک موجود رہے گا۔ جی، کنڈیاروں کے قریب محبت ڈیرہ تھانے کی حدود گاؤں اللہ بخش ٹانوری میں 2 لڑکیوں کے مبینہ اغوا کے خلاف ورثہ اور علاقہ مکینوں نے پریس کلب پہنچ کر احتجاج کیا اور محبت ڈیرہ پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی ہے۔ مظاہرین معشوق علی بنگانی، نیک محمد مرید علی بنگانی، بشیر احمد اور غازی خان بنگانی نے کہا ہے کہ گزشتہ رات مبینہ طور پر 8 مسلح افراد نے معشوق علی کے گھر پر حملہ کیا، فائرنگ کی اور اہل خانہ کو اسلحے کے زور پر یرغمال بنایا۔ ورثہ کے مطابق مسلح افراد مبینہ طور پر 2 لڑکیوں شہزادی اور حمیرہ کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ فرار ہوتے ہوئے اپنی 3 موٹر سائیکلیں وہیں چھوڑ دی۔ مظاہرین نے الزام عائد کیا کہ واقعے کی اطلاع دینے کے باوجود متعلقہ پولیس نے بروقت کارروائی نہیں کی۔ متاثرہ خاندان نے آئی جی سندھ، ڈی آئی جی نواب شاہ، ایس ایس پی نوشیرو فیروز اور دیگر حکام سے فوری نوٹس لینے اور دونوں لڑکیوں کی بازیابی اور انصاف کی فراہمی کا مطالبہ کیا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپیشل چائلڈ سینٹر میں جشن آزادی کے سلسلے میں شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں خصوصی بچوں، خواتین اور دیگر شرکاء نے بھرپور شرکت کی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ تقریب میں چیئرمین میونسپل کمیٹی ماتلی حاجی رضوان قائم خانی نے خصوصی طور پر شرکت کی ہے۔ پاکستان کی آزادی کی خوشی میں کیک کاٹا گیا اور خصوصی بچوں کو بھی کیک کھلایا گیا، جس سے بچوں کے چہروں پر خوشی نمایاں ہو گئی ہے۔ تقریب کے دوران بچوں اور شرکاء نے سبز ہلالی پرچم سے محبت اور وطن عزیز سے عقیدت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر راؤ مجاہد راجپوت اور راؤ طلحہ سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ تقریب کا مقصد خصوصی بچوں کو جشن آزادی کی خوشیوں میں شریک کرنا اور ان کے دلوں میں وطن سے محبت کے جذبے کو مزید اجاگر کرنا تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ میرپور خاص میں محکمہ سیاحت اور ثقافت کی جانب سے تھر
डिजर्ट सफारी आज़ादी ट्रेन मीरपुर खास पहुंच गई। डिप्टी कमिश्नर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और एसएसपी ने आने वाली ट्रेन का इस्तकबाल किया। मीरपुर खास ट्रेन पहुंचने पर डिप्टी कमिश्नर नवाब सुमेर लगारी, मेयर अब्दुल रऊफ गौरी, एसएसपी फिदा हुसैन और दीगर जिला अफसरान ने भरपूर इस्तकबाल किया। महकमा और सयाहत और सकाफत के अफसरान ने बताया कि थर डिजर्ट सफारी आज़ादी ट्रेन में 165 सयाह थर पार कर ट्रेन के जरिए जा रहे हैं, जहां रंगारंग जश्न आज़ादी की तकरीबात के साथ फोक म्यूजिक और सकाफत के रंग बिखेरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास की आवाम ने हमारा भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर आए हुए मेहमानों को मेयर अब्दुल रऊफ गौरी की जानिब से अजरक के तोहफे भी पेश किए गए हैं। ट्रेन के आने पर मकामी स्कूलों के बच्चों ने भी भरपूर इस्तकबाली पेश किया है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि पंडा नखान 28 सफ़र उल मौज़म के मौके पर शहादत हज़रत इमाम हुसैन मुश्तबा की मुनासबत से कोयला शाह कबीर में सालाना जुलूस अकीदत और एहतराम के साथ मुनक्किद हुआ, जिसमें अज़ादाराने इमाम हुसैन और मुख्तलिफ मातमी संगतों ने भरपूर शिरकत की है। आपको बताते चलें कि जुलूस के शुरका ने अज़ादारी, नोहा ख्वानी और मातमदारी के जरिए इमाम हुसैन मुश्तबा और अहले बैत अतहार से भी अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। जुलूस मुकर्ररा रिवायती रास्तों से होता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पसीर हुआ। इस मौके पर अज़ादारान ने नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा किया और इंतजामिया और सिक्योरिटी इदारों के साथ भरपूर ताउन किया। जुलूस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए इंतजामिया और मुतालिका सिक्योरिटी इदारों की जानिब से मुनासिब सिक्योरिटी और इंतजामी इक़दाम किए गए। कोटला शाह कबीर तहसील पंडाट नखान जिला जहलम और 28 सफ़रुल मुअज़्ज़म का सालाना जुलूस मजहबी अकीदत और एहतराम और पुरअमन माहौल में इख्तिताम पसीर हुआ। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान के 79वें यौम आज़ादी के सिलसिले में हैदराबाद प्रेस क्लब के न्यू ऑडिटोरियम हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जामियात के वाइस चांसलर्स, जिला इंतजामिया, पुलिस, सियासी और समाजी शख्सियात, सिविल सोसाइटी और सहाफ़ती बिरादरी ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। आपको बताते चलें कि तकरीब से खिताब करते हुए सिंध यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फतह मोहम्मद मरी, मेहरान यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर ताहा हुसैन अली और सिंध ज़रा यूनिवर्सिटी टंडोर जाम के वाइस चांसलर अल्ताफ हुसैन सयाल, डिप्टी कमिश्नर ज़ैनुल आबिदीन मेमन, एसएसपी शाहजेब चांचड़, अरकान सिंध असेंबली इंजीनियर साबिर हुसैन, कायम खानी, राशिद खान, सहाफ़ियों और दीगर ने खिताब किया है। मुकर्ररीन खिताब करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर आज़ादी अल्लाह ताला की अजीम नेमत है, जिसकी हिफाजत और कदर करना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने कौमी इत्तेहाद, अमन, इंसाफ और नज़्म व ज़ब्त, नौजवानों को बेहतर मौक़े फराहम करने पर जोर दिया। मुकर्ररीन का कहना था कि 14 अगस्त महज जश्न आज़ादी मनाने का दिन नहीं बल्कि तजदीद अहद का मौका है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा, सनतों की बहाली और नौजवान नस्ल को आगे लाना नागुज़ीर है। उन्होंने हैदराबाद की सनती शनाख्त बहाल करने के लिए इज्तिमाई किरदार अदा करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। तकरीब में DG HDA आफशार रबाब सैयद, डायरेक्टर इत्तलात शहजाद शेख समेत मुख्तलिफ शोबाहत ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात और सहाफ़ी बिरादरी ने शिरकत की है। हैदराबाद की यादगार शहादा पर पाकिस्तान यूथ एक्शन कमेटी के मरकजी चेयरमैन काशिफ हुसैन शाह की क़यादत में शहादा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर शहादा की तस्वीर पर दिए जलाए गए, फूल निछावर किए गए और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए हैं। आपको बताते चलें, इस मौके पर काशिफ हुसैन शाह ने कहा कि शहादा हमारी अजीम हीरोज़ हैं और इनकी कुर्बानियों को, इनके अहल खानों को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। उन्होंने कहा कि जब मौलाना फजल रहमान की जानिब से शहादा के हवाले से ये बयान सामने आया था, इस वक्त शहादा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम मुनक्किद करने का इरादा किया था। ताहम इस दौरान कुछ शरपसंद अनासिर ने यादगार शहादा और शहादा की तस्वीर उतार दी थी। काशिफ हुसैन शाह ने कहा है कि यादगार शहादा की बहाली और शहादा की तस्वीर दोबारा निस्ब करने के लिए उन्होंने दोबारा काम शुरू करवाया, ताकि शहादा की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाए और नई नस्ल को इनकी अजीम कुर्बानियों से आगाह किया जा सके। शहादा को खिराज अकीदत पेश करने के मौके पर माजिद नकवी, आमिर सोलंगी, नौमान अली, मंजूर अली और जुनेद खान समेत दीगर दोस्त भी मौजूद थे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह हैदराबाद में भी जश्न आज़ादी मनाने के लिए सब्ज परचमों की बहार आई हुई है और जगह जगह स्टॉल्स सजे हुए हैं और शहरियों में
जोश व खरोश पाया जाता है। आइए देखते हैं हैदराबाद से हमारे नुमाइंदे वसीम काजी की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के 79वीं जश्न आज़ादी के सिलसिले में हैदराबाद में बहुत जोश व खरोश पाया जाता है। जगह जगह झंडों और बैजेज और सब्ज रंग से दीदार चूड़ियों और बाजू से सजे हुए स्टॉल मौजूद हैं। शहरी 14 अगस्त की तैयारियों में मसरूफ नजर आते हैं। जोश जज्बे के साथ बनाना चाहिए, बहुत जोश जज्बे के साथ बनाना चाहिए। हमारा कायद आज़म इतनी मोहब्बत है कि हमने कायद आज़म का झंडा भी लिया हुआ है। 14 अगस्त जब आएगी, 14 अगस्त वाले दिन हमारा पाकिस्तान आज़ाद होगा। सबसे पहले मैं अपने पाकिस्तान वालों को जश्न आज़ादी के मुबारक में खुशामदीद कहता हूँ, ठीक है ना। और हमने हर साल की तरह स्टॉल लगाते हैं और इस साल भी हमने लगाया है। और इस महंगाई के दौर पर हमारी कोशिश ये है कि जितना हमारे ये पाकिस्तानी हैं उनको कम से कम रेट पर हम इसको दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा खुशी ये पाकिस्तानी बना सके। पाकिस्तान जिंदाबाद। खरीदारी करने वाले एक बच्चे का कहना है कि हम जश्न आज़ादी भरपूर अंदाज में मनाएंगे, जबकि स्टॉल मास्कार का कहना है कि महंगाई के इस दौर में शहरियों को कम कीमत पर झंडे, बैजेज और चूड़ियाँ फराहम करेंगे। कैमरा टीम के साथ वसीम काजी, मेट्रो 1 न्यूज़। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि सिंध ज़राई यूनिवर्सिटी टंडूजाम के ज़ेली इदारे खैरपुर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर एंड मैनेजमेंट साइंसेस ने सोशल फॉरेस्ट्री डिवीज़न खैरपुर मेरिस के ताउन से जश्न आज़ादी पाकिस्तान की मुनासबत से जुमेरात के रोज़ कॉलेज में शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया है। आपको बताते चलें कि इस मौके पर मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए। ये सरगर्मी ग्रीन पाकिस्तान मुहिम के तहत मुनक्किद की गई, जिसका मकसद खैरपुर मेरिस सूबा सिंध और पाकिस्तान को सरसब्ज बनाने के साथ तलबा में माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और मौसमियाती तब्दीलियों से मुतालिक शऊर उजागिर करना था। कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर इंजीनियर सैयद अली रज़ा ने कहा है कि रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर तालिब अली, खास खेली असातिज़ा, तलबा, कॉलेज के मुलाजमीन और महकमा जंगलात के एहलकारों के हमरा कॉलेज के अहाते में पौधे लगाए गए। इन कुर्बानियों को हकीकी खिराज अकीदत पेश करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हम एक पुरअमन, खुशहाल, सरसब्ज और माहौल दोस्त पाकिस्तान की तामीर में अमली किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि सिंध समेत पाकिस्तान के दीगर सूबे मौसमियाती तब्दीलियों के संगीन असरात, शदीद गर्मी, सैलाब, खुशसाली, पाकिस्तान पानी की किल्लत और ज़मीन की ज़ख़ीरे में कमी जैसे मसाइल का सामना कर रहे हैं। इन चैलेंजों से काबू पाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाना और इनकी मुनासबत देखभाल करना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली का इजलास 17 अगस्त 2026 को तलब करने का फैसला किया गया है। आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को इरसाल। वजारत पार्लिमानी उमूर ने इजलास तलबी की समरी तैयार करके ऐवान सदर भिजवा दी है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे राना मकबूल से। जी राना मकबूल, बताइएगा। हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास 17/2026 को तलब करने का फैसला कर लिया है, जिसकी समरी सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अर्साल कर दी गई है। इजलास बुलाने के लिए वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी तैयार करके ऐवान सदर भिजवाई गई है। ज़राए के मुताबिक सदर मुमलिकत से मंजूरी के बाद कौमी असम्बली का इजलास 17 अगस्त को तलब किए जाने के बाद नोटिफिकेशन जारी करेंगे। आईनी तरीक़ेकार के तहत कौमी असम्बली का इजलास सदर मुमलिकत तलब करते हैं, जबकि इजलास की तलबी के लिए हुकूमत की जानिब से समरी अर्साल की जाती है। ज़राए का कहना है इजलास में अहम कौमी और सियासी अमूर ज़ेर बहस आने का इम्कान है, जबकि हुकूमत की जानिब से कानून साजी का मुतल्लिक़ अमूर की एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। इजलास के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से मुतल्लिक़ मामलात, अवामी नौयत के अहम मसाइल, अराकीन कौमी असम्बली की जानिब से तवज्जो दिलाए प्रोसेस भी ज़ेर बहस आने का इम्कान है। कौमी असम्बली का इजलास हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी मामलात और बहस के हवाले से भी अहम करार दिया जा रहा है। अपोजिशन जमातों की जानिब से मुख्तलिफ कौमी और अवामी मसाइल ईवान में उठाए जाने का इम्कान है, जबकि हुकूमती अरकान हुकूमती पॉलिसियों और इक़दाम पर ईवान को तमाम मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक इजलास के हतमी एजेंडे का तयन कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से किया जाएगा, जबकि मुख्तलिफ वजारतों, मुतल्लिक़ा अदारों से कानून साजी और दीगर पार्लिमानी अमूर के हवाले से भी जरूरी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। वाज़ेह रहे कौमी असम्बली का इजलास की तलबी आइन के आर्टिकल 54 के तहत सदर मुमलिकत के आईनी इख्तियार के जरिए में अमल में आती है। आज में भी बाजार से पार्लिमानी अमूर की जान से इजलास तलब करने की समरी सदर मुमलिकत को अर्साल की जाती है।
17 अगस्त को होने वाला इजलास मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल, कानून साजी और अहम कौमी मामलात के हवाले से खास अहमियत इख्तियार कर सकता है। जी बहुत शुक्रिया राना मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहरनामे से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें।